Assalamu alaikum everyone, this is Abdullah Shahmir with you, and today we are going forward with one sample answer. एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम करता है, तो मैंने इससे पहले वाली भी एक वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके उसकी थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया जाए. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिवाइज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, पर्टिकुलरली पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम है कि वो अगर फैमिली इन स्टेट का सवाल आता है तो दे आर नॉट एबल टू लिंक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर के अपने साथ साथ पॉइंटर्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल डेफिनेटली बी एबल टू solve these questions, and you can use the perspective arguments in the question related to the family and state. Okay, so you can easily do these sort of things, but it depends on your intelligence, it depends on your analytical skills, how you are able to use the perspective. You need to understand one particular thing. Whenever you are going to talk about any perspectives related to the functionalist, try to link all those functions with the family policy, state policies. Okay, try to link the reproduction function with the state policies, like you can link these things with the Nazi Germany. You can link this concept with the contraception of Catholic countries, contraception policies of Catholic countries. You can link this concept with the with China one child policy. So you can link this function. Afterwards, if we talk about the function of socialization, let's suppose the function of socialization, in the UK, the government is endorsing the PSHE lessons to reduce the teenage pregnancies and to reduce the drug addiction and to reduce the violence within the schooling system. So yeah, I hope we are able to understand how to link. Let's suppose there is a function of there is a function, family function, but we can endorse that function with the state also. Okay, and the state is protecting them. Okay, state is protecting the children through social workers, and they are doing a lot of things, because the state in 1940 the UK declared themselves as a welfare state. So you can endorse these ideas. Okay, so try to link these things. Okay, and if we're talking about the Marxist perspective, so you can endorse the Marxist ideas with the context of the with the context of state policies. Like you are endorsing the capitalism as a state policy. Try to endorse capitalism as a state policy. So this will definitely help you to endorse the perspectives in the family and state question. Let's suppose, write down the question please. Evaluate the view that the nuclear family serves the interest of the state. You can, or the family serves the interest of the state. You can go with that. Evaluate the view that the family serves the interest of the state, or you can go with the evaluate the view that the nuclear family serves the interest of the state. You can go with this. Okay, so if you are talking about the support argument, we will definitely use the functionalist, traditional functionalist. First we need to understand this concept, and we can move forward. Like what? According to Parsons, there are two basic functions. We can say the irreducible functions, like socialization and stabilization of adult personality. And if we move forward, we can go with that the functions of the endorsing of norms and values. ठीक है भाई, फैमिली क्या करती है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखा रही होती है. नॉर्म, इसके अलावा जैसे नॉर्म्स एंड वैल्यूज में क्या चीज़ आती है. लेट्स सपोज अब मैं आई एम गोइंग टू ट्राई टू लिंक द फंक्शन विद द स्टेट. Okay, let's suppose the family used to endorse you for the respect for the authority. It's a norm कि भाई आपने अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करनी है, एंड अथॉरिटी कौन है, स्टेट है. ठीक है, फैमिली बताएगी कि भाई स्टेट की ये पॉलिसी है, यू आर अलाउड टू डू दिस एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें, स्टेट द फैमिली यूज टू इंडोर्स द कॉम्पिटिशन एंड हार्ड वर्क विच इवेंचुअली गिव द बेनिफिट टू द स्टेट. ठीक है, स्टेट के अंदर बेहतर लोग, हमारे पास कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो लोग होंगे वो ज़्यादा अच्छे, हमारे पास जो मेरिट होगा वो अच्छा होगा, बेहतर होगा. ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम कहते हैं कि मोरालिटी सिखा रही होती है. तो यानी कि क्या है, ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट के जो हमने आइडियाज़ डिस्कस किए थे वो तमाम चीज़ें जो हैं आपकी जो है स्टेट के साथ लिंक होती हैं. ठीक है, अगर हम इस इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर आप वही वाली बात कर सकते हो कि भाई ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट इंडोर्स दैट लेट्स सपोज पार्सन्स का जो इंस्ट्रूमेंटल रोल वाली बात है कि द मेल यूज टू फॉलो द इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड फीमेल यूज टू फॉलो द एक्सप्रेसिव रोल, तो ऑटोमेटिकली ये इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा कर रही है, एंड दिस इज रेप्लिकेटेड बाय द चिल्ड्रन. ठीक है, यू कैन गो विद दिस वे ऑल्सो. ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी के हवाले से, जिसको हम कहते हैं कि फैमिली
क्या कहते हैं, फैमिली इज़ अ वार्म बाथ फॉर इट्स मेंबर्स। ठीक है, वार्म बाथ का मतलब है कि एक स्टेबलाइज सुकून की जगह है। ठीक है, अब वो फैमिली इंडिविजुअल जो है, जो एक वर्कर है, जब उसकी फैमिली अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिकली वर्क प्लेस पे अच्छा काम करेगा, सोसाइटी में एक बेहतर इंडिविजुअल के तौर पे सामने आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्टेट यूज टू सपोर्ट द फैमिली, यानी कि फंक्शन वही वाली बात आएगी और जो हमने पहले इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस की थी कि द स्टेट इज गोइंग टू डेफिनेटली सपोर्ट द फैमिली थ्रू इट्स पॉलिसीज़ लाइक द टैक्स क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा फ्री नर्सरीज होती हैं जिसके अंदर बच्चों की ब्रिंगिंग होती है, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू द फैमिली ऑल्सो, यानी कि दोनों की रिलेशन, यानी कि वही वाली बात कि बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूँ न्यू राइट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। न्यू राइट का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यू राइट डाले बगैर तो फैमिली स्टेट का कॉन्सेप्ट बैठ ही नहीं सकता। इन कॉन्सेप्ट्स को आप पहले जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे न्यू राइट के, वो आप इस सवाल में भी ऐड ऑन कर सकते हो और जो कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी, देखिए एक्चुअली जो आपके न्यू राइट है ना, वो कहते हैं कि भाई जो सोशली बेनिफिशियल फैमिली का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ये। अकॉर्डिंग टू न्यू राइट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली बेनिफिशियल फैमिली। सोशली बेनिफिशियल फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, यानी कि जो सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, जिसके अंदर जो एक बच्चे को मेल और फीमेल दोनों रोल मॉडल्स दे रही होती है। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि जिस यानी कि न्यू राइट जो होते हैं दे सपोर्ट द सोशली बेनिफिशियल फैमिली एंड दे डिस्करेज द सोशली डिटरमिनेटेड फैमिली। ठीक है, अब सोशली डिटरमिनेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जैसे सिंगल पेरेंट फैमिली हो गया, सिंगलहुड हो गया, ठीक है, गे लेस्बियन फैमिलीज हो गया। ठीक है, अब वाई दे अपोज द सोशली डिटरमिनेटेड फैमिलीज। ठीक है, सोशली डिटरमिनेटेड फैमिलीज को ये अपोज क्यों करते हैं? वो एक सोशली बेनिफिशियल फैमिली को सपोर्ट करते हैं, सोशली डिटरमिनेटेड फैमिलीज को वो अपोज करते हैं। पहला एक आर्गूमेंट हमारे पास एक उसका होता है, एक मोरल आर्गूमेंट है। ठीक है, मोरल आर्गूमेंट क्या है कि भाई इससे सोशलाइजेशन इशूज़ होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर कि सोसाइटी में सोशलाइजेशन इशूज़ होते हैं कि भाई गे कपल्स एंड दिस एंड दैट। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक आर्गूमेंट कहता है कि भाई इन तमाम चीज़ों, सिंगल पेरेंट को सपोर्ट करने से, सिंगल रेट को सपोर्ट करने से डिपेंडेंसी कल्चर प्रमोट होता है। तो न्यू राइट यूज टू सपोर्ट द सोशली बेनिफिशियल फैमिली लाइक द nuclear family, and they will definitely oppose the socially determined families. ठीक है, अच्छा, अब इसका एक एवेल्युएशन भी है। ठीक है, कि न्यू राइट जो हैं वाई अब क्या है, न्यू राइट जो है सोशली डिटरमिनेटेड फैमिलीज़ को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिफाइड फैमिलीज़ को अपोज कर रहे हैं। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए कि डाइवर्सिटी को अपोज कर रहा है न्यू राइट। ठीक है, अब जब न्यू राइट अपोज कर रहा है तो उसको एवेल्युएट भी करना पड़ेगा। हाउएवर, सही है, ये जो आपकी न्यू राइट डिटरमाइन द सोशली डिटरमिनेटेड फैमिलीज बाय आइडियोलॉजी नॉट बाय फैक्ट्स। ठीक है, इन्होंने इन फैमिलीज़ को अपोज जो किया हुआ है, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी की बेसिस पे किया हुआ है, कोई फैक्चुअल बेसिस पे नहीं किया हुआ। आप ये आर्गूमेंट कर सकते हैं या आप यानी कि आप ये एवेल्युएशन दे सकते हैं कि भाई द न्यू राइट यूज टू अपोज द सोशली डिटरमिनेटेड फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ, सुनिएगा समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। इनकी फैक्ट्स की बेसिस पे काम नहीं किया जा रहा। इसके अलावा दूसरा आप एवेल्युएशन दे सकते हैं कि भाई न्यू राइट इग्नोर्स द डिसफंक्शनल फैमिलीज विद इन द डिसफंक्शंस विद इन द न्यूक्लियर फैमिली। आप ये बात भी कह सकते हैं कि भाई न्यू राइट सपोर्ट तो कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली को, लेकिन उन्होंने जो बहुत सारे डिसफंक्शंस हैं, बहुत सारे फैमिली के फंक्शंस नहीं परफॉर्म हो रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर किया है। ठीक है, यानी कि दो आर्गूमेंट्स हमारे पास एवेल्युएशन में क्रिएट होते हैं न्यू राइट के। पहले ये बात कि ये जो सोशली डिटरमिनेटेड फैमिलीज को अपोज कर रहे हैं, इट इज़ मोर ऑन द आइडियोलॉजी नॉट ऑन द फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स की बेसिस पे नहीं, आइडिया सिर्फ अपने एक ख्यालात की बेसिस पे अपोज करें। दूसरी बात जो इसके अंदर आती है हमारे पास, वो आती है कि इन्होंने डिसफंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली को अपोज किया हुआ है, डिसफंक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली को इग्नोर किया है कि उन्होंने उसकी बात नहीं की हुई। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आइडिया हमारे पास क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा ये हमने न्यू राइट की बात कर ली। ठीक है, फिर और हमने जो इस तरह से बात की, यानी कि हमने क्या कहा कि भाई फैमिली एंड स्टेट रिलेशनशिप यूज टू सपोर्ट बाय द ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट एंड द न्यू राइट। ये हमने आर्गूमेंट हमने सपोर्ट कर दिए। ठीक है, और उनकी फर्दर एवेल्युएशन हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि भाई जो फैमिली एंड स्टेट की रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट तो कर रहे हैं। ठीक है, बट दिस इज नेगेटिव, दिस रिलेशनशिप इज नेगेटिव। व्हाई दिस रिलेशनशिप इज नेगेटिव? ये रिलेशनशिप नेगेटिव इसलिए है कि बिकॉज दिस रिलेशनशिप यूज टू सपोर्ट द कैपिटलिज्म, कि फैमिली और स्टेट दोनों एक दूसरे को जब साथ देंगे तो दरअसल वो क्या कर रहे होंगे
वो कैपिटलिज्म को बेनिफिट देंगे। अब वो बेनिफिट कैसे देंगे? सिंपल सी बात है कि भाई स्टेट की इनहेरिटेंस की पॉलिसीज़ होती हैं। अब ये इनहेरिटेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करेगी। एंजल्स की बात आ जाएगी, एंजल्स इनहेरिटेंस की बात की थी। अब दिस इनहेरिटेंस पॉलिसी विल डेफिनेटली सपोर्ट द कैपिटलिज्म के मटीरियल कैपिटल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, सोसाइटी में इक्वालिटी आ ही नहीं रही इसकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा आइए से सोशलाइजेशन की जो अप्रोच है, सोशलाइजेशन जब स्टेट फैमिली सोशलाइजेशन करती है अपने बच्चों की, तो वह एक्चुअली आइडियोलॉजिकल अल्थूजर की बात आ जाएगी, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस के तौर पे काम कर रही होती है इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई ज़र्ट्स्की की बात आती है कि भाई लेट्स सपोज कि भाई आपके रिप्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स की बात है, रिप्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स हो रही है। एक तरफ फैमिली जो है रिप्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स कर रही है फॉर द कैपिटलिज्म, यानी कि वर्क इंडस्ट्रीज में जाके काम करेंगे, और दूसरी तरफ फैमिली यूज टू सपोर्ट द यूज टू क्रिएट द वर्कर फॉर द टू वर्क इनसाइड द हाउसेस, लाइक व्हाट कि भाई डोमेस्टिक लेबरर्स को तैयार किया जा रहा है। ये कौन कहता है? ज़र्ट्स्की कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, हमारे पास एंजल्स की बात कर ली हमने, अल्थूजर की बात कर ली हमने, ज़र्ट्स्की की बात कर ली। इसके बाद हम कहते हैं कि भाई ज़र्ट्स्की ने इसी थॉट को आगे कंटिन्यू किया था कि भाई जो आपकी प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली होती है, इट्स गोइंग टू लॉक एन इंडिविजुअल विद द प्राइवेट वरीज, यानी कि प्राइवेट इशूज़ के साथ, घर के इशूज़ के साथ लॉक कर देता है, ताकि द इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू थिंक अबाउट द मैक्रो सोशल प्रॉब्लम्स लाइक भाई इनइक्वालिटी हो गया, वायलेंस हो गया, कैपिटलिज्म हो गया। ये आपके मैक्रो रिलेटेड इशूज़ हैं, इस चीज़ के ऊपर इंसान काम कर ही नहीं पाता बिकॉज द इंडिविजुअल इज़ लॉक विद इन द फैमिली प्राइवेट वरीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फैमिली यूज टू प्रोटेक्ट द रूलिंग क्लास इंटरेस्ट, ठीक है, जो स्टेट के थ्रू इंडोर्स किए जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इसी ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के इस आर्गुमेंट को अपोज करते हैं, यानी कि इसको एवेलुएट करते हैं, ठीक है, तो इसमें बात आती है कि द स्टेट इज़ नॉट ओनली सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म, द स्टेट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है। लाइक द वेलफेयर स्टेट यूज टू सपोर्ट गिव द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, द वेलफेयर स्टेट यूज टू गिव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो उसी बात को, यानी कि सेफ्टी वेलफेयर स्टेट की बात को कहते हैं कि भाई मार्क्सिस्ट उसको भी की बात का आर्गूमेंट भी हम डाल सकते हैं, इसको रीवैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई हमने कहा कि हाउएवर हमने मार्क्सिज्म का आर्गूमेंट दिया, भाई हमने कहा हाउएवर इन वेलफेयर स्टेट द स्टेट यूज टू सपोर्ट द इंडिविजुअल थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, थ्रू एजुकेशन सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, बट द मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं जो मैंने कहा, बट द मार्क्सिस्ट consider the welfare state measures as a safety valve to support the capitalism, यानी कि ये जो जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी काम किए जा रहे हैं, सेफ्टी वॉल्व हैं, यानी कि एक तरह से सेफ्टी क्रिएट की जा रही है फॉर द कैपिटलिज्म, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आर्गूमेंट होगा कि इन प्रीवियस सोसाइटीज़, इन द प्री मॉडर्न सोसाइटीज़, द फैमिली द मैरिज वर द मैरिज ऑलवेज हैव सम इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है, मैरिज के इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, बट इन मॉडर्न सोसाइटीज़ द मैरिज डोंट हैव द इकोनॉमिक रीजंस, इट्स मोर अबाउट, इट्स मोर देन इकोनॉमिक एलिमेंट, इट्स मोर अबाउट अफेक्शन, इट्स मोर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो आपकी फैमिली को जो ताल्लुक़ आप स्टेट के साथ, कैपिटलिज्म के साथ लिंक कर रहे हैं कि वो फैमिली पहले ज़माने में इकोनॉमिकली लिंक थी, इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ें इस तरह से देखते थे, बट नाउ यू नीड टू थिंक डिफरेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म को, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम आगे इस चीज़ को लेके चलते हैं तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं फेमिनिज्म के हवाले से, तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आएगा इस चीज़ को। देखिए, फेमिनिज्म को जो हमारा कोर आर्गुमेंट है, द कोर आर्गुमेंट इज द फैमिली सर्व्स द नीड्स ऑफ द पेट्रियार्की, फैमिली सर्व्स द नीड्स ऑफ द पेट्रियार्की, यानी कि जो मेल डोमिनेंसी है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ बहुत सिंपल सी बात कि लिबरल फेमिनिस्ट के आर्गुमेंट को लेके आऊँ कि वो स्टेट को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन समझ सकते हैं, ऐसा सुपीरियर इंस्टीट्यूशन समझते हैं कि जो फैमिली की पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। द स्टेट कैन चेंज विद इन द फैमिली, कैन क्रिएट अ चेंज विद इन द पेट्रियार्कल फैमिली, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई वुमेन्स जो हैं फैमिली स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो फेमिनिस्ट का जो कोर आर्गुमेंट है, पहला तो डेल्फी का वुमेन ट्रिपल शिफ्ट का आर्गुमेंट आ सकता है कि भाई डेल्फी ने जो है ट्रिपल शिफ्ट को अपोज किया था, ठीक है। जब आप सिमेट्रिकल फैमिली भी होगी तो वो उसमें ट्रिपल शिफ्ट की वजह से वुमेन के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है। इसके अलावा अनपेड लेबर शिफ्ट की बात हो सकती है, ठीक है। अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इन तमाम चीज़ों की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तमाम इश्यूज़ तो है ना, बट
अकॉर्डिंग टू लिबरल फेमिनिस्ट स्टेट कैन रीड्रेस दीज इश्यूज़, ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लिबरल फेमिनिस्ट द जेंडर इनइक्वालिटीज़ और जो जेंडर इश्यूज़ हैं दे कैन बी रीड्रेस, ठीक है। दे कैन एम्पावर द वुमन टूवर्ड्स द वर्क, यानी कि वो वर्क की तरफ वुमन को एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि स्टेट कैन गिव द इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, वुमेन को इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स दे सकते हैं जिसके अंदर आप इनकी पे बेहतर की जा सके। इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग के अंदर स्टेट सपोर्ट करता है, और इसके अलावा आप कह सकते हो स्टेट नर्सिस प्रोवाइड करता है। तो यानी कि एक तरह से लिबरल फेमिनिस्ट जो हैं वो फैमिली एंड स्टेट की रिलेशनशिप को सपोर्ट पॉजिटिवली देखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कुछ आर्गूमेंट्स के ऊपर ये अपोज भी करेंगे कि आप इसको ग्राउंड रियलिटी के वाले से डिफरेंट में बात कर सकते हैं, लेकिन आप ओवरऑल जो है लिबरल फेमिनिस्ट इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड में आप पोस्ट मॉडर्निस्ट का आर्गुमेंट ले आ सकते हो कि देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, एवरी इंडिविजुअल विल डेवलप इट्स ओन नैरेटिव रिलेटेड टू हिज ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो अब और उसमें कहते हैं फैमिली एंड स्टेट का रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस वेरी करेगा। कुछ लोगों के लिए फैमिली एंड स्टेट का रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होगा। लेट्स सपोज दोज पीपल हु आर एंजॉइंग द स्टेट बेनिफिट्स दे विल डेफिनेटली सपोर्ट दीज थिंग्स, बट दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट इन दो सोसाइटीज़, आप सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी कर सकते हैं। दो सोसाइटीज़ जहाँ पे ये बेनिफिट्स नहीं है तो वो डेफिनेटली बात है रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज इन दो सोसाइटीज़ जहाँ पे गे एंड लेस्बियन मैरिजेस अलाउ हैं, ठीक है, वो जो हैं सोसाइटीज़ जो हैं वो स्टेट पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगी जो गे लेस्बियंस कम्युनिटीज़ होंगी। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर गे एंड लेस्बियन मैरिजेस अलाउ नहीं है तो ऐसे लोग जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं वो स्टेट पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। ये मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं फैमिली एंड स्टेट के हवाले से। आई होप यू लर्न समथिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसके साथ ही अब्दुल्ला शाह में को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।